Now let me record it and sharing with you whiteboard. Yeah, let me tell you one thing ki now you all have to care yourself. You all have to stay at home whenever necessary. Then you have to come out. Yeah, you have to go to market. Otherwise, you have to stay at your home. Take water वगैरह जो भी गर्म हो सके उसको and other thing which are necessary. Now in today's class we are going to take some important words related to drama. That is what number one word, that is foil. Foil. If you go with foil, it takes what? Foil. Number 1 point, when we talk about this particular term foil, foil already it refers to what? Enemy. He is my foil या he is my enemy. लेकिन जो foil जो character है वह किसको refer करता है? A character who contrasts, a character who contrasts a character who contrasts and parallels the main character in a play or story. The main character in a play or story. So remember that ki this is what, this is the foil. When you talk about foil, it means that ki a character who yeah, I was telling you कि a character who contrasts and parallels the main character in a play or story. जो main character है, जैसे अगर आप ये कहते हैं कि if there is a Hamlet, तो Hamlet एक main character है, लेकिन Hamlet के पैरेलल किस कैरेक्टर को और खड़ा किया गया है, तो वो जो होगा, जो Hamlet का शत्रु होगा या उसके पैरेलल या उसके कंट्रास्ट में जो कैरेक्टर लाया जाएगा, वह चीज क्या होगा? वो आपका फॉयल होगा. अगेन आई वुड लाइक टू से कि फॉयल इज अ कैरेक्टर, या एक कैरेक्टर होता है हु कंट्रास्ट, जो कंट्रास्ट होगा एंड पैरेलल, कंट्रास्ट भी होगा और उसके समकक्ष होगा, द मेन कैरेक्टर इन अ प्ले आर स्टोरी. इफ यू टेक द एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया वो मैंने हैमलेट की ही बात की. इफ यू गो विद व्हाट, इफ यू गो विद हैमलेट, तो लेयर्टीज जो है क्या है? लेयर्टीज फॉयल है. एग्जाम्पल ग्रेसिया, Laertes, लेयर्टीज इन हैमलेट. सो यू विल कम टू नो कि जो लेयर्टीज है इन हैमलेट एंड इसके अलावा इफ यू टेक हुम, if you take Iago, if you take Iago in Othello, if you take Iago in Othello, अगर आप फीमेल कैरेक्टर की बात करेंगे तो इमिलिया एंड बियांका आर द फाइल्स ऑफ डेस्डीमोना. सो रिमेंबर दैट कि जो मेन कैरेक्टर है उसके पैरेलल कौन सा दूसरा कैरेक्टर लाके खड़ा किया गया, उसको किल करने के लिए, अपोज करने के लिए, या कंट्रास्ट या उसके पैरेलल. तो दीज थिंग्स यू फाइंड स्पेशली लेयर्टीज इन हैमलेट. जो लेयर्टीज है वो हैमलेट को कैसे चैलेंज करते हैं ड्यूल में, उसको आप देखते हैं.
अगर आप इयागो की बात करेंगे तो यहाँ पे जब इयागो को मैं यूज करता हूँ तो इयागो का मैंने जो लिया हुआ है वह किससे तुलना किया हुआ, ओथेलो से। दिस पार्टिकुलर थिंग यू विल फाइंड। और अगर फीमेल कैरेक्टर उसी में आप देखेंगे तो इमिलिया एंड बियांका जो है वे किसका फाइल है, डेस्डिमोना का। यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट आल्सो, इमिलिया एंड बियांका, बियांका are files for Desdemona. Are files for Desdemona. So you will come to know कि Emilia and Bianca are files for Desdemona. These are the points, yeah, these are the things which you have to remember, which we have to follow. So I think that you are in position to understand कि what do you mean by आपका इससे क्या मतलब है, फाइल से क्या मतलब है, या फाइल को हम कैसे समझ सकते हैं. So we have to go with these points कि when we talk about file, तो file a character who contrasts and parallels the main character, a character who contrasts and parallels the main character. क्यों भाई मिला नहीं? So you find कि this point, what you find कि a character who contrasts and parallels the main character in a play or story. This is what, this is the file. And you can take the example Laertes in Hamlet, Iago in Othello, Emilia and Bianca. ये किसका है फाइल? ये डेस्डिमोना का फाइल है. एनी प्रॉब्लम या किसी को समझने में? किसी को कोई प्रॉब्लम, या शुड आई गो अहेड? ओके ओके. ओके. Now we have to take two more important words. One is a flashback. ये चीज पूछी जा चुकी है, flashback. Good afternoon. Madam, have you any query? I have done, I think is Shilpi madam? Shivangi ji. Okay. Shivangi ji, we have taken, that is the file. One word, only one word. Only one word, that is the file. Now the second word I'm taking, that is what, that is the flashback. And when I talk about flashback, you will come to know it's a very popular word even in our means our common life. We find ki the people use ki flashback, the word particular flashback, when the story is moving or going on. Sometimes you find that the past events are going to be repeated and again. जब कोई कहानी आगे बढ़ती रहती तो उसी कहानी में बीच में पुरानी घटना को भी क्या किया जाता है, एक बार उसका रिवाइज किया जाता है या दिखाने की कोशिश की जाती है. दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्लैशबैक. इफ यू टॉक अबाउट द डिफिनीशन ऑफ दिस पार्टिकुलर वर्ड, यू विल कम टू नो. पहला पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, एन इंटरप्शन, डबल आर यू पी टी आई ओ एन, एन इंटरप्शन ऑफ अ वर्क्स क्रोनोलॉजी, chronology to describe our present, to describe our present, to describe our present, an incident that occurred, an incident that occurred
that occurred prior to the main period, prior, Prior, you have to write down R because no space at all, prior to the main period of a work's action, main period of a work's action, of a work's action. So I'm telling you what here, I'm telling you ki how you can understand this particular point. नंबर 2 इसी से रिलेटेड जो पॉइंट है कि राइटर्स यूज फ्लैशबैक, राइटर्स यूज flashback, writers use flashbacks to complicate the sense, to complicate the sense to complicate the sense of chronology in the plot, of chronology in the plot, chronology in the plot of their works, of their works, and to convey the richness, and to convey the richness of the experience of human time, of the experience of human time. So remember that when we talk about this particular thing, you will come to know there are two important points related to flashback. सबसे पहला चीज कि जब फ्लैशबैक होता है उसमें उन्होंने वर्ड यूज किया एन इंटरप्शन, इसमें एक तरह का इंटरप्शन होता है ऑफ अ वर्क्स क्रोनोलॉजी, किसी भी वर्क्स की क्रोनोलॉजी का इंटरप्शन होता है. जस्ट आई वांट टू से one thing, when we talk about an interruption of a work's chronology, it means that कि जो वर्क है उस पार्टिकुलर वर्क का जो आगे बढ़ रहा था कि शुरू में ये दिखाया जाना था, बीच में ये दिखाया जाना था, लास्ट में ये दिखाया जाना था. जैसे अगर आप जो है एक किसी किंग का, इफ यू टेक सम्राट अशोक, अगर आप सम्राट अशोक को लेते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सम्राट अशोक इस समय पैदा हुए, बले पले बढ़े, उसके बाद उन्होंने राजगद्दी पाई, फिर उसके बाद क्या किया कि आप उनके जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक का जो जर्नी है, अगर आप उसको एकदम क्रॉनिकली ठीक ठाक ढंग से दिखा रहे हैं, लेकिन बीच में पता चली कि आपने क्या किया कि जब आपको गद्दी पर उनके बैठने से पहले फिर आपने वही स्टोरी घुमा दी कि वो ऐसे उन्होंने जन्म लिया, फिर ऐसे उनकी यात्रा रही, फिर उसके बाद ये रहे, फिर अगर आपने बीते हुए घटना का कोई अंश जो है बीच में ला करके दिखाने की कोशिश किए, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, फ्लैशबैक कहा जाता है. और यह जो है मेन स्टोरी को डिस्टर्ब करता है. तो फ्लैशबैक क्या है, एन इंटरप्शन, इंटरप्शन उन्हें बाधित करना, किसको बाधित करना, ऑफ अ वर्क्स क्रोनोलॉजी, किसी भी वर्क का जो क्रोनोलॉजी है उस क्रोनोलॉजी में जैसे दिखाया गया कि ये पैदा हुए, पले बढ़े, ये गद्दी पर एक तरह से उन्होंने अचीव किया, गद्दी को पे बैठे, उसके बाद और जीवन के जो उनके बचे हुए दिन थे उसको उन्होंने काटा, या लड़ाई झगड़ा संघर्ष बैटल युद्ध जो कुछ भी हुआ, दैट इज अनदर थिंग. तो एक क्रोनोलॉजी में आपने दिखाया. लेकिन अगर उसी में बीच में आपने क्या किया कि कुछ ऐसी सीन दिखा दी जो आगे बढ़ने की जगह पीछे वाली लाइफ से बिलोंग करती है, उनकी पास्ट लाइफ से बिलोंग करती है, अगर आपने उसको दिखा दिया तो वह फ्लैशबैक होगा और वह मेन स्टोरी को डिस्टर्ब करेगा.
जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये देखेंगे कि इंडियन मूवी में अगर आप शोले का मैं उदाहरण लूं, अगर आप शोले को देखेंगे तो शोले में फ्लैशबैक एक जगह दिखाया गया है जब संजीव कपूर जब जो है गब्बर सिंह आते हैं और उन्होंने गांव में जो भी किया, लोगों को मारा पीटा और तमाम चीजें, तो उस समय अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र लड़ते लड़ते उनके पास जो औजार हथियार रहता है वो खत्म हो जाता है, तो एक बंदूक पड़ी रहती है संजीव कुमार ठाकुर जी के पास, उनसे कहते हैं इसको मुझे दो, तो वो नहीं दे पाते हैं। बाद में जब युद्ध खत्म होता है, गब्बर सिंह या उनके आदमी जब वहां से गांव से भागते हैं, तब उसके बाद जो है धर्मेंद्र वहां पे जाते हैं उनके पास, उनसे पूछते हैं कि तुमने मुझे बंदूक क्यों उठा के नहीं दी। तो उनके दोनों हाथ तो कटे हुए थे, और उस कटे हुए हाथ को हमेशा एक अगर कहा जाए एक चादर से वो ओढ़े रहते थे, ढका रहता था, इस वजह से वो बंदूक उठा के नहीं दे पाए थे। लेकिन ये चीज धर्मेंद्र को और अमिताभ बच्चन को नहीं पता था। तो उस स्टोरी को जब वो पूरी घटना बताते हैं, वो पास्ट की घटना होती, फिर वो उसको बताते हैं मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो जो कहानी आगे बढ़ना चाहिए था वो आगे ना बढ़ करके उस बीते हुए एपिसोड में चला जाता, और उस बीते हुए एपिसोड को जब आपके सामने पेश किया जाता है तब उसको क्या कहा जाएगा, उसको फ्लैश बैक कहा जाएगा, कि उस बीती हुई घटना को यहाँ लिंक किया जा रहा है। अभी तो एक चीज ये हो सकता था कि केवल जो है वो अपना चादर हट, जब हवा से चादर उनकी उड़ती है तो उसमें देख लेते हैं कि हाँ वो लोग, कि इनके हाथ है ही नहीं है। तो अब अगर हाथ नहीं है तो उसी से समझ में आ सकता था कि इन्होंने इसीलिए उठा के मुझे नहीं दिया। लेकिन वहां पे राइटर ने क्या किया था, या जो आप कह सकते हैं कि राइटर, आई एम यूजिंग द वर्ड, जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर ने उस कहानी को लिंक किया और मेन कहानी से जोड़ा। मेन कहानी थोड़े समय के लिए रुक जाती है। अब यहाँ पे क्या होता था, मेन कहानी में रिवेंज का कॉन्सेप्ट आता है कि गब्बर को कैसे मारा जाए, कैसे डिफीट किया जाए, इधर कहानी आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन उस कहानी को थोड़े समय से को रुक करके पास्ट की चीजों को लाके रखा जाता है। तो दिस इज वाई दिस इज द फ्लैश बैक। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि टू डिस्क्राइब आर प्रेजेंट एंड इंसिडेंट दैट, कि वो क्रोनोलॉजी डिस्टर्ब होती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आकर प्रायर टू द मेन पीरियड ऑफ वर्क्स एक्शन ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि राइटर्स यूज फ्लैशबैक, जो राइटर्स वो फ्लैशबैक का यूज इसलिए करते हैं टू कॉम्प्लिकेट द सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी, जो सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी उसको कॉम्प्लिकेट बनाना चाहते हैं इन द प्लॉट ऑफ देयर वर्क्स एंड टू कन्वे द रिचनेस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन टाइम। और ये भी दिखाना चाहते हैं कि मानव को वक्त के साथ कितना अनुभव होता है, कितनी सारी चीजों की उसको जानकारी मिलती है, कितना सारा उसको अनुभव होता है, वो सब चीजों की वो जानकारी देते हुए चलते हैं। तो दिस इज व्हाट दिस इज द फ्लैश बैक। आई थिंक यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके ओके। एक इसी से रिलेटेड वर्ड है जो फ्लैश बैक से है, उसी से बिल्कुल रिलेटेड वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर शैडोइंग। फोर शेडोइंग, यू विल कम टू नो कि ये जो वर्ड है फोर शेडोइंग, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें ये चीज दिखाने की कोशिश किया जाता है, कुछ ऐसे आपको हिंट्स दिए जाएंगे जो ये बताएगा कि आगे क्या हो रहा है। जैसे फ्लैशबैक में पीछे की बात बताई जाती है, वैसे फोर शेडोइंग में ये बताया जाता है कि आप ड्रामा में या कहानी में आगे क्या होगा। फोर माने पहले से, शेडो का मतलब होता है कि क्लू, आपको कुछ क्लू या सिग्नल दिया जाता है। तो जो फोर शेडोइंग वर्ड है, इसके लिए आप कर सकते हैं कि एक पार्टिकुलर जो इसका डिफिनीशन है पहला पॉइंट में, हिंट्स ऑफ, हिंट्स ऑफ व्हाट इज टू कम, hints of what is to come in the action of a play or story, in the action of a play or story. You will come to know कि this is highly significant hints of what is to come in the action of a play or story। तो ये इसी से बता देता, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है कि आपको हिंट मिलता है, क्या मिलता है, हिंट्स।
ऑफ व्हाट इज टू कम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिंट्स ऑफ व्हाट इज टू कम। आपको यह हिंट्स मिलता है कि आने वाला क्या है, क्या आने वाला है या क्या चीजें घटित हो रही है। हिंट्स ऑफ व्हाट इज टू कम इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। जो प्ले का एक्शन है अब उसमें क्या होने वाला है या क्या दिखाया जाने वाला है, इस चीज की जानकारी आपको मिलती है। तो दिस इज हिंट्स ऑफ व्हाट इज टू कम इन द एक्शन ऑफ अ प्ले और स्टोरी। मेरे ख्याल से अगर आप इतना पॉइंट केवल इतना ध्यान में रखेंगे तो यू विल कम टू नो कि व्हाट इज फोर शेडोइंग। फोर माने पहले, शैडो का मतलब होता है क्लू, पहले से कोई क्लू, कोई सुराग, कोई इशारा देना कि अब आगे यह घटित होने वाला है, वही चीज क्या होता है फोर शेडोइंग। इसका मतलब कि द व्हाट विल हैपन या स्टोरी में अब और क्या होगा इसकी जानकारी या इसके बारे में इशारा करना या कुछ चीज देना, यह चीज क्या कहा जाता है, यह चीज फोर शेडोइंग है। और उसके अलावा आपका क्या होता है, जो और एक शब्द था फ्लैशबैक, वह क्या होता है पास्ट की घटना को जब एक तरह से लाया जाता है सामने तो उसको क्या कहा जाता है, फ्लैशबैक कहा जाता है। फोर शेडोइंग एंड फ्लैशबैक। आई थिंक कि नाउ यू गॉट इट। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड विच आई हैव टू टेक, दैट इज व्हाट, दैट इज द फोर्थ वॉल। फोर्थ वॉल एक इमेजिनरी वॉल है जो थिएटर को डिकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। FOURTH, फोर्थ वॉल। Remember that when you talk about fourth wall, then this fourth wall is the imaginary wall of the box theater. The imaginary wall of the box theater. The imaginary wall of the box theater. The imaginary wall of the box theater setting supposedly removed to supposedly removed to supposedly removed to allow the audience to see the action. Allow the audience to see the action. To see the action. So you will come to know when you talk about the fourth wall, this particular fourth wall, that is an imaginary wall. सबसे पहले तो चीज ध्यान में रखना है, कोई वॉल नहीं होता बल्कि यह एक इमेजिनरी वॉल होता है। एक चीज जो उन्होंने कहा कि दिस इज व्हाट, दिस इज द इमेजिनरी वॉल ऑफ द बॉक्स थिएटर। जो बॉक्स थिएटर होता है उसका ये एक इमेजिनरी वॉल होता है, ऑफ द बॉक्स थिएटर। उसकी सेटिंग, थिएटर ऑफ द बॉक्स थिएटर सेटिंग सपोजली, और उसमें दिखा जाता है कि इस वॉल को रिमूव किया जाता है क्या करने के लिए, टू अलाउ द ऑडियंस टू सी द एक्शन, वे एक्शन को देखें। जब तक फोर्थ वॉल को रिमूव नहीं किया जाएगा तब तक यह जो है वो ऑडियंस उसको देख, एक्शन को देख नहीं पाएंगे। आप मुझे केवल एक चीज ये बताइए कि जब कोई थिएटर तैयार किया जाता है तो थिएटर को तीन तरफ से वॉल से घेरा जाता है और जो जो आपका फ्रंट पोर्शन होता है वह ओपन होता है, ये तो आप इमेजिन कर रहे होंगे।
आप उस थिएटर को ना समझ जो आइनॉक्स थिएटर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आइनॉक्स थिएटर में आप चले गए तो उसमें जो है एक पर्दा लगा हुआ है, तो उस पर्दे को जो है क्या किया गया, चालू किया गया, ना इस ये वाला नहीं। आप ये समझिए कि अगर जो है जब आप स्कूल डेज में अगर आप कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे तो स्कूल डेज में वहां पर जो थिएटर बनाया जाता था या आज भी जो बनाया जाता है उस पार्टिकुलर थिएटर को जिसको आप स्टेज कहते हैं, उस स्टेज में आप देखेंगे कि वो स्टेज तीन तरफ से दीवालों से घिरा होता था। चाहे वो दीवाल आप कह दीजिए, चाहे उसको पर्दा लगा दिया जाता था, जो भी आप कहिए, अगर मैं उसको कहूँ पर्दा ही लगा दिया गया, तो वो पर्दा जो होता था तीन तरफ से लगा होता था। चौथी तरफ से वह जो फ्रंट पोर्शन होता था, वह फ्रंट पोर्शन क्या होता था, उसको जो है ओपन रखा जाता था। लेकिन जब आप शेक्सपियरियन प्लेज या और भी चीजें पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज कहा जाता था कि फ्रंट पोर्शन में भी पर्दे को गिराया जाता था और पर्दे को उठाया जाता। फॉलिंग ऑफ द कर्टेन, राइजिंग ऑफ द कर्टेन। राइजिंग ऑफ द कर्टेन का मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द न्यू सीन, एंड फॉलिंग ऑफ द कर्टेन मतलब क्लोजिंग ऑफ द सीन या कंप्लीटिंग ऑफ द सीन। ये जो फ्रंट पोर्शन है, जहां पे कोई दीवाल तो नहीं है लेकिन एक इमेजिनरी वॉल होता है, और वह इमेजिनरी वॉल क्या किया जाता है, उसको विड्रॉ किया जाता है। कर्टन कर्टन के रूप में अगर वो है तो उस कर्टन को क्या किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा, उसको ड्रॉ किया जाएगा। और तभी जाकर के ऑडियंस क्या करते हैं, जो भी इवेंट है, जो एक्शन है, वे उसको देख पाते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा कि फोर्थ वॉल मीन्स द इमेजिनरी वॉल ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का इमेजिनरी वॉल। ट्राई टू अंडरस्टैंड आज के समय में कितना ऐसा जगह होती है जहाँ पे थिएटर है, और उस थिएटर में उन्होंने क्या किया है कि उन एक एक पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज किया जाता है, और उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज करने पर भी दे प्रेस द बटन एंड यू विल कम टू नो नाउ द पर्दा या जो कर्टन है दैट इज गोइंग टू ड्रॉ। तो वो चीजें होती हैं, और जब तक वो ड्रा नहीं होता तब तक सामने क्या चीज हो रहा है उसको आप देख नहीं पाते। तो बहुत सारा चीज तो आज तो रिमोट कंट्रोलिंग हो गया और रिमोट सेंसिंग हो गया, या उन सब चीजों के माध्यम से चीजें होती हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि फोर्थ वॉल जो है यह इमेजिनरी वॉल है ऑफ द बॉक्स थिएटर। बॉक्स थिएटर का स्पेशली उसकी सेटिंग को लेकर के बात किया जाता है। बॉक्स थिएटर सेटिंग का, जिसमें क्या किया जाता है, सपोजली रिमूव्ड, जिसको यह माना जाता है कि इसको वहां पर जो कर्टन था या जो फोर्थ वॉल है उसको रिमूव किया गया, हटाया गया, और अलाउ द ऑडियंस टू सी द एक्शन, और ऑडियंस को ये अनुमति दी जाती है कि वे उस एक्शन को देख सकें। और जो फोर्थ वॉल है इट्स नथिंग एट ऑल। आवाज मेरी नहीं जा रही सब? क्या मुझे बता सकते हैं सबको आवाज जा रही मेरी? ओके ओके। और जो मैडम ये कह रही थी आवाज नहीं आ रही है, वो अपना नाम बताएं। नीलम मैडम, मुझे लगता है आपके साइड में नेटवर्किंग इशू हो सकता है, थोड़ा सा आप उसको एक बार से रिकनेक्ट होइए। ओके। नहीं नहीं नहीं, अब अगर आ रही तो डोंट चेंज इट। इफ यू आर गेटिंग माय वॉइस डोंट चेंज इट। अलाउ द ऑडियंस टू सी द एक्शन, वे एक्शन को जो है देख सकें। तो फोर्थ वॉल आपको कुछ नहीं समझना, या क्या एक इमेजिनरी वॉल है। आई थिंक कि इतना समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? शुड आई गो अहेड? Okay, okay. Now, remember that, madam, when there is a word imaginary wall, then it means that there is no wall. That's only the imaginary wall. And imaginary wall, you can remove it anytime and you can set it again. शब्द में जो लिखा गया, क्या शब्द लिखा गया है कि फोर्थ वॉल मीन्स इमेजिनरी वॉल। Audience only imagine, spectators only imagine that there is the fourth wall, especially where, especially in modern theater. आर यू आर यू गेटिंग इट ना? अगर वो वॉल जो है रियल में होगा तब तो उसको
ड्रा करने की बात या उसकी बात होगी ना, ये तो मैं केवल समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया था, लेकिन मैंने पहले ही लिख दिया था इट्स ओनली द इमेजिनरी वर्ल्ड, देयर इज नो वॉल बट देयर इज वॉल ओनली इन इमेजिनेशन। कोई वॉल नहीं है लेकिन एक काल्पनिक वॉल है। तीन तीन तरफ से तो वॉल रहेगा ही, लेकिन चौथी तरफ का जो वॉल है, फोर्थ वॉल है, वह एक काल्पनिक वॉल है। अगर आ जाता है कि फोर्थ वॉल क्या है, तो इसको कम से कम आपको पता होना चाहिए कि इट्स द इमेजिनरी वॉल। या नाउ म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। Yeah, undoubtedly, when you have taken your seat and sitting in front of the theater, then you have a what you have always you have a mind in your mind कि now the movie will come, now the movie will start. तो मूवी के स्टार्ट होने से पहले यू फाइंड एडवर्टीजमेंट, यू फाइंड सम अदर थिंग। आजकल खासकर थिएटर में ये सब चीजें ज्यादा दिखाया जा रहा है। तो वो जो चीजें हैं कि आप जब वहां बैठते हैं और आपको लगता है कि अब मूवी शुरू होगी, उसके पहले का एक आपके माइंड में इमेजिनरी वॉल चल रहा है कि अभी कुछ कुछ अभी भी प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक इन द सेंस की कुछ रुकावट है। और वह रुकावट किस रूप में है? वह रुकावट कभी एडवर्टीजमेंट के रूप में है, कभी किसी और चीज के रूप में है। जैसे अब जो है क्या किया गया कि जो हमारा जो है राष्ट्रीय उसका क्या कहते हैं कि जो हमारा राष्ट्रगीत है वो भी पहले आता है, हम या नेशनल एंथम को लेके हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ता है या चीजें होती है। तो पहले ये नहीं होता था, लेकिन मूवी के स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीजें होती हुई है। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, फोर्थ वॉल ही है। तब जाके आपको वो रिमूव होता है, फिर उसके बाद यू कम उसको आप देख पाते हैं। आर यू गेटिंग? नाउ म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज द जेस्चर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज द जेस्चर। एंड यू विल कम टू नो कि जो जेस्चर है, द फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ कैरेक्टर ड्यूरिंग अ प्ले। द फिजिकल द फिजिकल movement of a character the physical movement of a character during a play during a play the physical movement of a character during a play. This is what, this is the gesture. Full stop. Gesture is used, gesture is used to reveal character to reveal character. Gesture is used to reveal character and may include facial expression may may include facial expression and may include facial expression as well as movements of other parts
movements of other parts other parts of an actor's body actor's body. So you will come to know कि this particular gesture, the physical movement of a character, या क्या है, एक फिजिकल मूवमेंट है, वह केवल फिजिकल मूवमेंट होगा, बट दैट कैरेक्टर विल बी मम, साइलेंट, विल नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, वह केवल अपने फिजिकल मूवमेंट से, उसी के हाव भाव से वह होगा। द फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ कैरेक्टर इन अ प्ले। तो एक बहुत सिंपल सा डिफिनेशन जेस्चर का, द फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ कैरेक्टर ड्यूरिंग अ प्ले, जेस्चर इज यूज्ड, इसका यूज क्या क्यों किया जाता है, टू रिवील कैरेक्टर, कैरेक्टर को रिवील करने के लिए, एंड मे इंक्लूड, और क्या क्या इसमें इंक्लूड हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन, उसके चेहरे का हाव भाव, एज वेल एज मूवमेंट्स ऑफ अदर पार्ट्स, और उसके शरीर के अन्य अंगों का जो मूवमेंट है वो सब चीजें यूज की जाती हैं। ऑफ एन एक्टर्स बॉडी, एक एक्टर की बॉडी का, ऑफ एन एक्टर्स बॉडी। सो यू विल कम टू नो ये पार्टिकुलर चीजें या ये चीजें हम देखते हैं जो जेस्चर की कैटेगरी में है, या इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जेस्चर, द फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ कैरेक्टर ड्यूरिंग अ प्ले, gesture is used to reveal character and may include facial expressions as well as movements of other parts of an actor's body. आई थिंक कि यू ऑल आर गेटिंग इट, कि इस तरह का जो चीजें होती है उसको हम किस में नाम देते हैं, उसको हम जेस्चर में नाम देते हैं। एंड एक्सेप्ट इट यू विल कम टू नो कि देर इज व्हाट एन अदर वर्ड, यहीं पे मैं लिखना चाहूंगा पैंटोमाइम, ये चीज पूछा जा चुका है, पैंटोमाइम, पैंटोमाइम। पैंटोमाइम, it refers to what, it refers to silent mum and dumb presentation of a character. दिस इज पैंटोमाइम, दीज आर द टू वर्ड्स विच यू हैव टू रिमेंबर। जब कोई कैरेक्टर बिल्कुल साइलेंट है, मम है और डम्ब है, प्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरेक्टर, देखिए पैंटोमाइम में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, वो साइलेंट रहेगा, चुपचाप रहेगा, मम रहेगा, डम्ब रहेगा, प्रेजेंटेशन। लेकिन जेस्चर जो होगा उस कई चीजों को इंडिकेट करेगा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और साथ ही साथ जो और उसके ऑर्गन्स हैं वो कैसे उसको यूज करता है, कैसे उसको वहां पे अपनी बात को रखने के लिए। तो जेस्चर एक तरह की दूसरी भाषा होती है, जो कि हम कहीं ना कहीं हम उसको समझ रहे हैं कि इशारों इशारों में जो चीजें कहना। तो अगर वो चीज यूज की जाती है या उस तरह का चीजें होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, जेस्चर। द फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का जो फिजिकल मूवमेंट है ड्यूरिंग अ प्ले, एक प्ले में या एक प्ले को जब परफॉर्म किया जाता है, जेस्चर क्यों यूज किया जाता है, जेस्चर इज यूज टू रिवील कैरेक्टर एंड में इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन एज वेल एज मूवमेंट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ एन एक्टर्स बॉडी, उसको रखा जाता है। पैंटोमाइम जो होता है वो साइलेंट मम एंड डम्ब प्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरेक्टर। So these things you find here. So किसी को कोई प्रॉब्लम? जी, yeah, that is also pantomime, dumb mime silent, yeah, that is
माइम शो तो बहुत, या या दैट इज द पॉइंट ऑफ माइम, क्योंकि बहुत ज्यादा माइम शो पॉपुलर है इन इवन इन सो मेनी, अगर आप देखेंगे धारावाहिक में भी, और इवन अभी बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे जो सीआईडी धारावाहिक आता था तो उसमें एक पूरा एपिसोड पैंटोमाइम को लेके वहां परफॉर्म किया गया था, एंड समवन मर्डर समवन, उसको लेके वहां पे उसमें पूरा उसमें उनका इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वो चीजें वहां पे रही है अनडाउटली उसी का पार्ट। We can't say that they're synonym, we can say that they have the similarity. Okay. So any other person? Just I want to take the name of Pushpa ji and Aparna ji, Kanchan madam, Shivangi ji, and Anu Tiwari madam, and Neelam Gupta madam, and so many madams who have joined this session. मीन्स जो हमारी नए लोग आए हुए हैं जो इस सेशन को ज्वाइन किए हैं, उनमें से कोई भी हो जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बिकॉज आफ्टर शेयरिंग द स्क्रीन आई एम अनेबल टू गेट द पॉइंट हु हैव ज्वाइन। शिल्पी मैडम प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट। मैडम प्लीज। ओके, एनी अदर, अनीता मैडम और आरती मैडम? ओके ओके, आई थिंक आई हैव टू गो अहेड, ओके ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग अनदर वर्ड, दैट इज व्हाट, दैट इज द आयाम्बिक। ऑलरेडी आई हैव डन, लेकिन यहाँ पे चीज मैं फिर से बता दूं कि दिस इज अ वेरी पॉपुलर वर्ड रिलेटेड टू मीटर, but this word iambic, it refers to what? It refers to unstressed syllable is followed by stressed one. And oh my god, an unstressed syllable is followed by stressed one. So you will come to know कि this particular iambic, when we talk about iambic, then iambic is what? An unstressed syllable. आयाम्बिक एक ऐसा शब्द है जो मीटर से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहला जो सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस होगा। अनस्ट्रेस का मतलब कि बगैर दबाव डाले हुए अनस्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड, वह अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलो किया जाएगा। उसके बाद का जो सिलेबल आएगा वह क्या होगा? स्ट्रेस्ड वन होगा। एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। तो जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है वह फॉलो किया जाता है, किसके थ्रू फॉलो किया जाएगा? स्ट्रेस्ड वन के थ्रू। तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर कि iambic मीन्स an unstressed syllable is followed by stressed one. Are you getting the point? If I take one word, if I take a word that is what ki today, टुडे एक वर्ड है, लेकिन इस टुडे जो वर्ड है इसमें दो सिलेबल है, एक सिलेबल टू हो गया, दूसरा वर्ड हो गया डे। इट्स ओनली वन वर्ड, बट यू विल कम टू नो कि देयर आर टू सिलेबल्स। ये जो टुडे है, उस पार्टिकुलर टुडे में यू विल कम टू नो जो टी ओ टू आ रहा है या अनस्ट्रेस्ड है, या अनस्ट्रेस्ड, इस पे कोई 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 दबाव नहीं डाला जा रहा है। लेकिन जो आपका डे डे आ रहा है, इस पर आपका क्या है? इस पे एक स्ट्रेस पड़ रहा है। तो जब भी स्ट्रेस पड़ता है उसका मार्क इस तरह से होता है, और जो है स्ट्रेस नहीं है उसको आप इस तरह के सिंबल से कर सकते हैं। तो टू डे में टू पे कोई वो नहीं है, यू दैट इज अनस्ट्रेस्ड, बट डे इज स्ट्रेस। तो आयाम्बिक अगर कभी भी आता है, कई बार मेरी बातें हुई है, मैंने लोगों को बताया था, बट सम पीपल हु हैव ज्वाइंड दिस सेशन स्पेशली इन अप्रैल फ्रॉम 5th अप्रैल, उनके लिए एक नया टर्म हो सकता है। तो आयाम्बिक एक ऐसा शब्द है जिसमें क्या किया जाता है? दिखाया जाता है कि दो सिलेबल होगा, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा। अगर कोई पूछता है कि इस सिलेबल क्या है, तो सिलेबल एक ऐसा शब्द है, सिलेबल एक ऐसा शब्द है
जो यह बताता है कि न शब्द बल्कि पार्ट ऑफ वर्ड, वह शब्द का हिस्सा होता है। जब आप किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जहां पर आपकी आवाज नेचुरली शब्द के जिस हिस्से पर रुक जाती है उसको सिलेबल कहा जाता है। तो इफ आई से कि सिलेबल एक क्या है, पार्ट ऑफ वर्ड है वेयर आर साउंड स्टॉप्स नेचुरली ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन, जहां पर हमारी आवाज प्रोनाउंसिएशन के समय नेचुरली रुक जाती है उसको हम सिलेबल कहते हैं। तो एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन, एंड यू विल कम टू नो कि एक शब्द हमने लिया, वह शब्द क्या है, टुडे है, या एक शब्द है लेकिन इस शब्द में दो सिलेबल है। कैसे? क्योंकि जब आप इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपकी आवाज पहले टू पर रुकती है फिर डे पर जाकर के, टू डे, इसका मतलब इस एक शब्द में दो सिलेबल है, टू डे। तो लेकिन जो टू है, this is what, this is the unstressed syllable and day is the stressed syllable. So I think you are in position to understand. जी, syllable में अन या अनब्रोकन, yeah, one unbroken sound, exactly, one unbroken sound, especially one unbroken sound where our sounds stop naturally. If I use the word कि when I pronounce any word and where our sounds stop naturally during pronunciation, it means that कि our sound goes without breaking, that covers TO2, means when you pronounce this particular two, then here TO2, that is what it, here you find ki our sound is not going to break, unbroken sound here, so that part is what ki unbroken sound, undoubtedly that is okay. So this is what, this is the thing we are getting ki iambic को लेकर के जो है. Now I will take one or two more words after only 2 or 3 minutes, that is what ki next word is image. When we talk about image, then remember that ki image is what? Image is a word picture. Image is a word picture. ये यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड पिक्चर. इफ यू टेक एनी वर्ड, इफ यू प्रोनाउंस एनी वर्ड, तो उस वर्ड से रिलेटेड अगर वह वर्ड जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नहीं, अगर कंक्रीट को करता है तो एक पिक्चर बन करके आएगी. फॉर एग्जांपल के लिए इफ यू से कि आई हैव अ पेट डॉग, आई हैव अ पेट डॉग. अब यहाँ पे जैसे ही आपने वर्ड यूज किया पेट डॉग का, तो जो इमेज आ रही है, एक तो इमेज आएगी डॉग की, इमेज आएगी. देयर आर सो मेनी एनिमल्स इन इन दिस वर्ल्ड, बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन उन एनिमल्स में केवल उसी का इमेज आएगा जो कि ये वर्ड डॉग है, जो इमेज आपको ट्रेडिशनल मीनिंग के थ्रू दादा दादा से पहले के लोग, या जब वेर यूर स्टूडेंट, आप प्राइमरी या प्री प्राइमरी के जब आप स्टूडेंट्स थे, तो बुक में जो एक इमेज डॉग की बनाई गई थी वही इमेज आपके माइंड में तुरंत आएगा. फिर उसके बाद सबसे पहले एनिमल्स के, एनिमल्स बहुत सारे हैं लेकिन उस एनिमल्स में से डॉग आपको तुरंत पता चलेगा, डॉग इज अ एनिमल. तो उस एनिमल में से जिसका इमेज आ रहा है वो डॉग का इमेज आ रहा है. लेकिन फिर आपको ये भी आएगा कि देयर आर सो मेनी डॉग्स, लेकिन उस डॉग में से आपके साथ पहले जो एडजेक्टिव यूज किया गया वह कौन सा, पेट डॉग. देन यू विल कम टू नो कि एक इमेज जो बनेगी पेट डॉग का इमेज बनेगा, कि यह जो पेट डॉग है यह ऐसा डॉग नहीं जो कि दैट इज फाउंड इन स्ट्रीट, दैट इज नॉट अ वैंडरिंग डॉग बट दैट इज अ पेट डॉग. वह जो है पेट डॉग का इमेज आपके सामने आएगा. तो इमेज को बस बहुत सिंपल वे में, बहुत उसको कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं बनाना है. इमेज इज अ वर्ड पिक्चर, यह एक वर्ड पिक्चर है. कोई भी शब्द आप लेंगे, कोई भी आप बात करेंगे, तो आपके माइंड में ये पार्टिकुलर चीज आएगी कि इमेज इज व्हाट, इमेज इज अ वर्ड पिक्चर, it's a word picture, and this thing you have to contain, this thing you have to take. uh, should I go ahead?
Madam, have you done it? Okay. Related to image, I will take another word, that is what? That is the imagery. You will come to know when you refers imagery, it refers to what? It refers to the pattern of related details in a work. Imagery, it refers to it refers to the pattern of the pattern of related details in a work. In a work. If you go with this point, if you go with this point की स्पेशली इमेजरी, यू विल कम टू नो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ अ रिलेटेड डिटेल्स इन अ वर्क। वह एक पैटर्न होगा पूरा कि किस तरह से उस पार्टिकुलर चीज को प्रेजेंट किया जा रहा है। और ये जो पैटर्न होगा, ये क्या होगा? कंपैरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज होगा, पार्टिकुलरली ऑफ इमेजेस होगा इन अ लिटरेरी वर्क, मतलब लैंग्वेज और इमेजेस को लेकर के उसमें यूज किया जाएगा। नाउ आई वांट टू नो कि कैन यू टेल मी कि जब आप ये कहते हैं कि इट रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ अ रिलेटेड डिटेल्स इन अ वर्क, किसी एक वर्क को जब आप लेंगे, किसी एक पोयम को जब आप लेते हैं, तो डू यू फाइंड इमेज या डू यू फाइंड इमेजरी? If you want to understand the whole poem, undoubtedly there is what? Undoubtedly there is the image. But when you say image, image is a word picture. Then you try to find out what types of images: olfactory, gustatory, or synesthetic, kinesthetic, and so many images you will come to know. Thermal image, cluster image, or well, so many images you will come to know. But when you talk about imagery, it refers to what? It refers to ultimately ki when you go with the especially a work or a poem or the pieces of literature, when you go through any text or any poem, then you find what कि it refers to the pattern कि उस poem को कैसे present किया गया। चूंकि उस poem में एक image नहीं होगा, उस poem में बहुत सारी image होगी, poet का emotions, feelings और तमाम चीजों को दिखाने के लिए so many images you find। जैसे अगर आप जो है if you take John Keats, you will come to know कि John Keats uses sensuous image। तो क्या सेंसुअस इमेज का मतलब एक इमेज हो गया? हमारी जितनी सेंसेस हैं, आई का, टंग का, माउथ, ईयर का, वट एवर वी हैव द सेंसेस, नोज का, उससे रिलेटेड सारी इमेजेस वो यूज करते हैं। तो जो वो पैटर्न है, उस पार्टिकुलर पैटर्न को समझने के लिए हम उसको क्या नाम देते हैं? दैट इज व्हाट? दैट इज द इमेजरी। तो इमेजरी जो है क्या होता है? इट रिफर्स टू द पैटर्न कि इमेज की कौन सी पैटर्न। इमेजरी का मतलब कि व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ इमेज हैज बीन यूज्ड टू मेक अंडरस्टैंड दैट पार्टिकुलर वर्क। इट रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ रिलेटेड डिटेल्स इन अ वर्क। और यह जो रिलेटेड जो ये पैटर्न होगा, इसको लैंग्वेज और इमेजेस के थ्रू समझा जा सकता है, लैंग्वेज एंड इमेजेस के थ्रू। दूसरा पॉइंट की LANG, कैसी लैंग्वेज यूज की गई है और कैसी इमेजेस। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको किसी पोयम में आपको डार्क साइड ऑफ लाइफ दिखाना होगा, तो डार्क साइड ऑफ लाइफ दिखाने के लिए आपको वैसा ही पैटर्न तो यूज करना पड़ेगा ना, वैसी ही इमेज तो आप लाएंगे। जैसे अगर शेक्सपियर ने ट्रेजिडी में मैकबेथ को अगर उन्होंने प्रेजेंट किया, तो उन्होंने मैकबेथ को रिलेटेड जो ट्रेजिक इवेंट है या जितना भी ट्रेजिक एक्शन है या ट्रेजिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए थंडरिंग, लाइटिंग, हर्ली बर्ली,
the entry of the three witches and its attendant. So एक उसका पूरा पैटर्न उन्होंने तैयार किया. Then you have prepared that it's what it's a tragedy और tragedy में ये चीजें होती हैं. तो वहां पे देखा जाता है कि आपने कैसी लैंग्वेज यूज की है और उस कौन सी इमेज जो है आपने वर्ड वहां पे कैसा इमेजेस यूज किया हुआ. दिस इज द imagery. So in this session we have taken these words. One or two class I will take more, one or two class related to. अब जब ये चल रहा है तो जब पूरा ड्रामा से रिलेटेड वर्ड खत्म हो जाएगा तभी कोई और नया टॉपिक शुरू करेंगे. बट आई हैव टू कंप्लीट दिस पार्टिकुलर थिंग. आई थिंक कि नाउ यू ऑल हैव गॉन दिस पॉइंट. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा. जो नाउ कंक्लूडिंग. नाउ madam can't take any question, can't take because I'm getting late. I have Rosa and I have to do some other work. Okay, okay, you can just send your message in chat box में आप भेज दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा व्हाट्सएप. ओके हाँ. ओके ओके.